Alright, the next one is disturbing. Concerns about my husband's hygiene. Salam Junaid, hope you're doing well. I'm writing to discuss something personal and sensitive. My husband's hygiene, which has been bothering me and affecting our relationship. We've been together for a couple of years now, and I had never noticed this issue when we worked together. Okay. The problem started after we got married. His mother called me to her room one day and mentioned on a Friday morning that her son, my husband, used to bathe twice or thrice a week and change his clothes often, but I've noticed he's become less frequent with showering. Madam, ye bhi less frequent hai. She continued blaming me and throwing me under the bus. When I brought this up with him, he got defensive and replied, "You should have asked her when was the last time I actually took a bath twice a week." He added, "Why is she even commenting on my hygiene? She herself bathes once a week, Friday to Friday." I swear I went numb. There was nothing left to say. It's been 5 years, and the only habit he's consistent about is changing his socks daily. He doesn't change his clothes after work despite my requests. Apparently, people think that because it's a love marriage, he'd be more considerate, but he doesn't even respect me. A husband who's head over heels for his wife would listen to her, obey her, and respect her. I'm asking him to bathe and take care of himself for his own sake, not just for me. If that's too much to ask, then I'm at a loss. His hair is oily, he smells, but I can only cry about it silently. I recently tried talking to him again, and he said, "No, I don't want to. It's too cold." And I just bathed on Saturday. What the fuck, man? So clearly it's not yesterday, it's Saturday. It means कि ये एटलीस्ट मंडे की बात है. तौबा तौबा तौबा. मैं सुबह से 2 बार नहा चुका हूँ. अभी क्या टाइम हो रहा है? शाम के 7 बज रहे हैं. 2 बार तो मैं नहा चुका हूँ. अभी रात को तीसरा भी होगा. ठीक है, सर्दी नहीं पड़ती, बट अगर मैं इस्लामाबाद में भी हूँ या लाहौर में हूँ तो 2 बार तो है ही है भाई. गर्म पानी आ रहा है खल्ली वल्ली. डिस्पाइट दैट ही ड्रेसेस वेल एंड वेयर्स नाइस शूज, ऑल थैंक्स टू मी. Else he'd just go to work in a hoodie. He even gets compliments on his dressing, but to me it seems of no use. His father, despite health issues, makes an effort to stay clean and presentable, which makes me wonder why he never taught his son the same. I blame his mother for spoiling him and not teaching him basic hygiene habits. His family dynamics are strange. He's not close to his father, hence why his father never really bothered teaching him the basics. His mother and my husband don't seem to prioritize cleanliness and shared responsibilities. I am helpless and frustrated when he uses cologne but won't shower. I've tried everything and I'm starting to think there's no point in discussing this further. I'm expecting our first child and I'll have to take it upon myself to teach our son about hygiene since I can't rely on his father to set a good example. Important part. Best regards, someone you know, but I won't share my name for obvious reasons. अब मुझे यहाँ पे टेंशन हो रही है. Who is this? So clearly I don't know the guy. If you're saying I know you, then you might be the primary person because bad hygiene वाले मेरी जिंदगी में कोई है ही नहीं. There are people who might not shower every day but they never smell bad. ऐसे भी कुछ लोग होते हैं. They never smell bad. आप देख रहे होगे कि यार ये कपड़े रिपीटेड है बट दे नेवर स्मेल बैड. सो क्लियरली आई डोंट नो द गाय. आई नो यू. अब आई डोंट नो हु यू आर. अब मेरा गेस वर्क अगर मैं लगाऊं, बाकी ये इसमें कहानी में ट्विस्ट भी हो सकता है ना. आपने सास ससुर डाल दिए, क्या पता वो हो ही ना, और आपने ऐसे ही डाल दिया. सो आई डोंट नो. खैर, नॉट गोना गो इनटू द गेस वर्क. दिस इज एक्सट्रीमली लैक ऑफ तरबियत एंड नथिंग एल्स. माँ कह रही है कि बेटा पहले हफ्ते में 3 बार नहाता था, अब कम नहा रहा है. माँ को वो 3 बार वाला ज़्यादा लगता था, वो नॉर्मल लगता था. अरे भाई रोज़ नहाना है, रोज़ रोज़ रोज़, क्यों नहीं? तो और बेटा आगे से कह रहा है कि माँ को बोलो खुद आप जुम्मे के जुम्मे नहाती हो. बे यार कौन लोग हैं ये लहसुन अदरक के भरे हुए. उफ, तौबा तौबा तौबा. तो सोच के मुझे उल्टी आ रही है भाई. अल्लाह का शुक्र है भाई, वालदेन ने कुछ दिया ना दिया, तरबियत दे दी कि भाई साफ़ सुथरा रहने की. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई. ये बहुत बड़ी नेमत है. मेरे टीचर एक थे, वो ये बोलते थे कि भाई हाइजीन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपसे कोई 1 करोड़ की डील भी कर रहा हो, बट इफ़ देर स्मेलिंग बैड, उनके मुंह से बदबू आ रही है, उनके कपड़ों से स्मेल आ रही है, उनकी बॉडी से, आप बात भी नहीं करोगे. यार कुछ कुछ लोग
देखो, एक होता है आप सुबह के निकले हुए हो, आपका डिओड्रेंट वफात पा गया 12 बजे तक, बहुत गर्मी है और आपने आउटडोर्स बहुत किया है, तो शाम तक कोई ना कोई महक आ जाएगी आप में से, ठीक है। अच्छा, इट्स इजीली आइडेंटिफाइबल। मैं इस चीज़ में बहुत बहुत घुसता हूँ, तो इसलिए मुझे ना ज़रा इसके लेवल्स पता है। तो एक तो लेवल वो होता था कि यार थोड़ा टाइम हो गया है और गर्मी बहुत थी वगैरह वगैरह, तो शाम तक आप यू स्टार्ट टू स्मेल अ लिटिल, बट यू कैन इजीली टेल कि ये आज ही की बनाई हुई है। एक होता है मुरक्कब 4 दिन पुराना, वो होता है मरे हुए चूहे जैसा, या कोई कोई लाश में से जो बदबू ताफुन जो उठता है ना। यार एक बंदा था हमारे ऑफिस में, व्हेन आई यूज्ड टू वर्क, 2004 की बात है। आई स्वेयर टू गॉड, आई एम येट टू स्मेल समबडी वर्स देन दैट गाय। आई एम येट टू स्मेल, लाइक मुझे, आई फिजिकली, लाइक मुझे उल्टी आते आते रह गई। लाइक दैट गाय वॉज अ डेड रकून मैन, अ लिविंग डेड। और इतनी बड़ी कंपनी थी भाई हमारी, वो जीएम जो थी अमरीकी, वो गोरी औरत थी भाई, वो भी मुंह पे रुमाल रख के चली जाती थी। फिर हमने, एक और साहब थे, इंशाल्लाह माशाल्लाह पार्टी, वो जोहर पढ़ने जा रहे हैं, असर को वापस आ रहे हैं, मगर बदबू पूरी दे रहे हैं। भाई तू क्या वजू कर रहा है, बगले को भी वजू कर ले भाई थोड़ा। तो एक बार फिर मैंने ये किया कि अगर सीधे हाथ से लिखो ना, तो भाई मैंने पर्ची पे लिखा प्लीज़ यूज़ डिओड्रेंट, ठीक है। लेकिन अगर सीधे हाथ से लिखता और अगर वो ऑफेंड होते तो कमरे में वो भांप लेते आसानी से कि इन चार में से कोई है। और अगर राइटिंग कॉम्पिटिशन, आई ऑलवेज थिंक कंक्लूसिव, आगे क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, कौन सी, यार मैं ही बोलता हूँ और मैं ही भूल रहा हूँ, प्रिएम्प्टिव मेजर कर लें आप। तो मैंने अगर बात इन्वेस्टिगेशन तक गई और हैंड राइटिंग मैच हो गई तो मसला है। तो मैंने उल्टे हाथ से लिखा, दिस इज़ नॉट माई डोमिनेंट हैंड, उल्टे हाथ से मैंने लिखा प्लीज़ यूज़ डिओड्रेंट, मतलब आप कर ले मैच, और उनके कीबोर्ड के नीचे छुपा दिया। और मेक श्योर किया कि पर्चा थोड़ा सा बाहर हो, ताकि उनको इंक्विजिटिव हो कि यार इसके नीचे क्या है। तो अगली सुबह जब वो आए तो हम कनखियों से काम करके यूं देख रहे थे, यूं इधर नजरें थी हमारी। तो उन्होंने पर्चा देखा देखा और उसको मरोड़ के साइड पे रख दिया और काम करने लग गए। अमल नहीं किया भेड़ की आंख, मजाल के अमल कर लें। तौबा तौबा तौबा। और ख़वातीन भी इस काम में, इस कार खैर में भरपूर हिस्सेदार है। ख़ासकर वो जो बुरका वॉश नहीं करती, क्योंकि वो तो ऊपर से पहना है, अरे भाई उसमें भी आ जाती है स्मेल। बड़े मसले मसाइल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, मॉल हो, बाज़ार हो, भाई कुछ कुछ तो यार, मतलब ऐसा झरोका देती हैं कि बंदे के 14 तबक क्या 28 तबक रोशन हो जाते हैं। ठीक है, मैन एंड वेमेन इक्वली, जैसे ये ऐसी होंगी ना, इसी तरह की आंटी होंगी जो जुम्मे को नहाई होंगी और अगली जुमेरात को राबी सेंटर में महका गई आपको। आपका बंदे का दिमाग शार्ट हो जाता है भाई, सही मानों में। पता नहीं क्या लोग हैं भाई, शेव करें अंडर आर्म, वक्त जुम्मे के जुम्मे करनी चाहिए भाई, बढ़ने ना दें, ऐसा माहौल ही ना क्रिएट करें, अमेजोन का जंगल ही ना बनाए कि फिर उसमें पसीना सरायत करे और फिर ज़ायरा आगे के मामला। डिओड्रेंट यूज़ करें, डिओड्रेंट महंगा लगता है, और भी सस्ती चीज़ें आती हैं भाई। मैंने कभी यूज़ नहीं की, फटकरी कहते हैं, नाई वाई लगा रहे होते हैं, वो यूज़ कर ले, कुछ भी कर ले भाई। अगर आप रोज़ नहा के कपड़े नए फ्रेश पहन रहे हैं, आप में से स्मेल आ ही नहीं सकती, कभी भी नहीं आ सकती। फिर हमारी खुराकें भी भाई, ज़ाहिर है अगर आप चर्बी खाओगे, गोश्त, दुम्बे के गोश्त की, दुम्बे की बट खा रहे हो आप चर्बी से भरी हुई, तो वो चर्बी आप में से ही निकलेगी ना। तो जब पता है कि हमारे खानों में भी ज़रा इस तरह के मामला हैं, तो बी वेरी वेरी माइंडफुल। और कौन सा फैब्रिक पहन रहे हैं, कौन से मौसम में कौन सा फैब्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवर रिपीट योर क्लोथ्स। दफ्तर को शाम, आप बाजी आप एक काम करें, ये शाम को आए ना, शर्ट पैंट तो उतारते ही होगा ना बनियान वनियान पहनने के लिए, जी भाई फैब्रिक मौसम के लिहाज से, हाँ तो भाई वो ऑफिस से आए, जैसी शर्ट उतार के टांगे सीधा वॉशिंग मशीन में डाल दें, रिपीट करने ही ना दे, और अगले दिन के कपड़े रेडी रख के खुद ही लटका दे, भाई ये पहन के जाने हैं आपने। रिपीट नहीं हो सकते कपड़े, जिस तरह मोजे चेंज कर रहे हैं ना, इसी तरह उनके कपड़े चेंज कर रहे हैं। अब बच्चा बच्चे की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा कि 2 साल यू वर्क विद हिम, यू नेवर नोटिस, तो फिर शायद वो वही वाला टाइम है जो अम्मा ने कहा कि 3 हफ्ते में 3 बार नहाता था, अब उन्होंने कम कर दिया है। सर्दी क्या होता है यार, सर्दी इज़ नो बहाना।
गीज़र ऑन करो, शुरू हो जाओ। अगर गीज़र में गैस नहीं आ रही तो इलेक्ट्रिक वाला ले लो। अगर इलेक्ट्रिक वाले से इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आता है तो भैया दैट मीन्स यू कांट अफोर्ड अ बेसिक लाइफ, तो देन डोंट गेट मैरिड। सीधी सीधी बात है भाई। बेसिक चीज़ें अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो बीवी बच्चा कैसे अफोर्ड करोगे? ये तो ज़्यादा मेंटेनेंस वाली चीज़ है। पहले गीज़र अफोर्ड करने के काबिल हो जाओ, फिर शादियाँ करो। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक गीज़र भी नहीं है, चलो बिजली भी नहीं आती आपके यहाँ, लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है, गैस भी नहीं आती, आई अंडरस्टैंड। पतीला चूल्हे पे गर्म कर लो भाई। हमने तो ज़िंदगी भर यही किया है। गीज़र तो अब देखा है ज़िंदगी में, सारा बचपन पतीले में गुजरा है। नीम गर्म कर लो, मैं ही तो करता था, ये जो मैं वीडियो में बोल रहा था वो मैं ही तो करता था। चूल्हे पे चढ़ा दो पतीला, और वो साफ़ी होती है ना, गंदा कपड़ा वोडेवर जो भी, उससे उठाओ, बाल्टी में डालो, बाकी बाल्टी में मिक्स करो। क्या मुश्किल है भाई? ये बात होती है तरबियत से भाई। जब आप में इतनी हो ना कि यार मेरी वजह से कोई दूसरा अनॉय हो सकता है, अव्वल तो अपने लिए साफ हो। अगर अपने लिए नहीं हो सकते दूसरों के लिए हो जाओ भाई। मगर प्लीज़ प्लीज़, जितने लोग सुन रहे हैं, ख़ासतौर पे जो लोग बाहर रहते हैं, जो यूरोप वगैरह में ठंडे मुल्कों में रहते हैं, आप वही जैकेट उतारते हो, उसी में फिर आप लहसन प्याज बनाते हो। वो लहसन प्याज आपकी जैकेट में घुसता है, ना जैकेट धोते हो ना अपने आप को धोते हो। फिर स्टीरियोटाइप बनते हैं। या तो जैकेट का मुंह कहीं और करो, कहीं और दबा दो, या फिर घर को पूरा स्प्रे स्प्रे करो, हर चीज़ ओके की रिपोर्ट रखो, वेंटिलेशन रखो, नहाओ। गर्म पानी तो आता है यार, दबा के आता है इंग्लैंड वगैरह में यार, कहाँ नहीं आता गर्म पानी। आज के दौर में ये बोलना कि सर्दी है तो मैं नहा नहीं रहा, अरे कोल्ड शावर ले भाई, हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा। चलो नहीं ले सकते तो फिर देयर इज़ नो बहाना टू एनीथिंग। भाई हमारे यहाँ पानी नहीं आता था, तो सुबह उठ के 4 बजे जाके मोटर लगाता था मैं, क्योंकि वो पानी की लाइन में पानी आता ही सुबह 4 बजे था। तो मोटर खोलनी होती थी, टैंकी भरनी होती थी, ये सारे काम किए। पाइप यहाँ से निकाला, पड़ोसी की ज़ाहिर है अंकल बूढ़े थे, वो मेरी भी टैंकी भर दी, अगर उनकी भी टैंकी भरी। जितनी सर्दी है छत पे खड़े हैं यही काम कर रहे हैं, टैंकियाँ भर रहे हैं लोगों की। तो उसी का फ़ायदा हुआ आज अल्लाह ने हमारी टैंकी भरी हुई है। ये होता है ना भाई। तो कभी भाई सर्दी गर्मी को बहाना नहीं बनाया। पिटाई खाना ही नहीं मिलता था भाई, नहाओगे नहीं, मिलेगा ही नहीं कुछ। तो बचपन से ही प्रैक्टिस है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कमरे से बाहर नहीं निकलता भाई मैं नहाए बगैर। अब इसमें मैं वाली बात नहीं, अपनी मिसाल से ही बता समझा सकता हूँ। तो या मैन, थैंकफुली भाई, परफ्यूम महंगे अपनी जगह, अगर खुद नहाए हुए नहीं हो तो भाई आप कुछ भी जितना भी नीच परफ्यूम लगा लो, नीच नीच पना ही आएगा अंदर से। तो प्लीज़ ख़वातीन, देख, अच्छा चले, आपको नहा, आप कह रही हो 2 साल में उससे बदबू नहीं आई। ऑयली बाल तो नज़र आ जाते हैं भाई, वो तो दूसरे दिन नज़र आ जाते हैं। ये भी नहीं देखा आपने, बंदा अपनी दाढ़ी वाड़ी ओके रख रहा है, शेव शूव टाइम पे कर रहा है, क्लिननेस दिख जाती है। ये 2 साल जो आप प्यार में अंधी रही हैं, तो आपको भी नहीं देखा, ये भी बड़ी हैरत की बात है। मैनरिज्म दिख जाते हैं, गंदे नाखून, गंदे कपड़े, गंदा कॉलर, ये सब दिख जाता है। और 2-3 डेट्स में दिख जाता है। आपने तो 2 साल साथ काम किया, यानी आपने 700 दिन साथ गुजारे हैं, मतलब दिन भर 8 घंटे। तो ये चीज़ तो बहुत आराम से आया हो जाती है। यू कैन ईजिली लुक एट अ पर्सन एंड टेल कि इसका हाइजीन लेवल क्या होगा। आपको सूंघने की जरूरत नहीं, दूर से पता चल जाता है भाई ऐसा ही है। दूर से दिख जाता है बंदा कि ये गलीज होगा, मरे हुए चूहे की स्मेल आएगी इससे या खुशबुएं आएंगी, दूर से पता चल जाता है। दाढ़ी बिगड़ी हुई होगी, बाल टेढ़े मेढ़े होंगे, डैंड्रफ भरी होगी, ऑयली हो रहे होंगे, गंदा तेल लगा के, तारा मीरा का तेल लगा के घूम रहा होगा, बदबू बदबू कर रहा होगा। ये तो पता चल जाता है, मैनरिज्म तो दिख जाती है भाई, आपकी अपकीप से दिख जाती है। तो आई मीन, अब वही विक्टिम ब्लेमिंग वाली बात तो नहीं है, बट यू हैड 2 fucking years टू फिगर इट आउट मैम। आप यही नहीं फिगर आउट कर पाई। खैर, अब ये तो हो गया, आगे क्या है? आपने ये तो कर दिया कि भाई बच्चे की तरबियत मेरे हाथ में है। माँ बाप से आर्ग्यू ना करें, बिकॉज उन्होंने जब अपनी औलाद को ही नहीं तरबियत दी, तो फिर अब आप उनसे क्या लड़ना। और इट इज़ बैड बिहेवियर, एब्सोल्युटली। ये भी बिहेवियर में आता है ना, सिर्फ क्या ऊंची आवाज़ में बात करना या हाथ पैर चलाना बैड बिहेवियर थोड़ी है। राइट्स है ना आपके पार्टनर के, उसमें राइट ऑफ गुड एक्सपीरियंस भी तो है उसका। अब सोचो, वो बराबर में सो रही है पूरी रात, गद्दी बगले लेके वो लेटा हुआ है बराबर में आदमी। एक काम करे, डिओड्रेंट मार दिया करे रात को उसको, थोड़ा शेम वेम दिलाएं।
आसपास गुजरे ना रूम में स्प्रे मार दें, सटल, आप कुछ कहें ही नहीं, फिब्रीज मार दें कमरे में, या जब बाथरूम से आए स्प्रे मार दें। डू थिंग्स आफ्टर वो गुजरे तो स्प्रे मार दें, ताकि उसको एहसास हो कि यार शायद मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है। गैरत होगी, शर्म होगी तो खुद ही सीधा हो जाएगा। नहीं तो अगर सर्दियों के बहाने करेगा तो देन यू हैव अ डर्टी मैन, एंड आई एम सॉरी टू से बट लाइक यू हैव टू लिव अ लाइफ विद सच काइंड ऑफ अ गाय। इट्स हॉरेबल यार, इट्स हॉरेबल लिविंग। क्योंकि भाई ये तो सिर्फ आप तक महदूद नहीं है ना। पार्टनर, देखो हम दुनिया के लिए शादी नहीं करते, लेकिन एक सोशल करेंसी भी होती है। आपका पार्टनर इस काबिल हो कि आप किसी अच्छी महफिल में लेके जाएं तो अगला बोले यार, क्योंकि आपका पार्टनर डिटरमिन करता है कि आप अपने आप को कितना रिस्पेक्ट देती हैं। इफ यू आर डीलिंग विद दैट काइंड ऑफ शिट, that speaks for how much you respect yourself. If you have a nagging wife who's like belittling you, हर महफिल में आपकी बुराई कर रही हैं और सटल तरीके से, तो दैट मीन्स यू कीप अप विद डिसरिस्पेक्ट। तो यानी आप रिस्पेक्ट के काबिल ही नहीं हो, और आपको वो जगह जगह इस तरह से वो कौन सा, हाँ एलेक बॉल्डविन का था ना वो रेड कार्पेट वाला, ही सेइंग एंड शी इज लाइक डोंट स्पीक व्हेन आई एम स्पीकिंग। बेचारा छोटा सा इतना बड़ा हॉलीवुड का स्टार है। सो यू कैन ईजिली टेल द डायनामिक्स कि उसकी इज्जत ही नहीं है, कुत्ते वाली इज्जत है उसकी घर में। सो योर पार्टनर इज बेसिकली अ सिग्नल टू द वर्ल्ड कि हु आई एम एज अ पर्सन, वॉट आई टॉलरेट एज अ पर्सन। सो आप इनको शादी ब्याह में लेके जा रही हैं, अपने ख़ानदान में कहीं लेके जा रही हैं, किसी ओकेजन में, खतना पे, बर्थडे पार्टी, वट, तो ये बदबू मारता फिरेगा तो उसका तो वो अलग है। बट लाइक पीपल हु नो यू विल क्वेश्चन यू, इज दिस इज द बेस्ट यू हैव? 6 अरब लोग हैं दुनिया में, दिस इज द बेस्ट यू कुड कम अप विद? लाइक द गाय लैक्स बेसिक हाइजीन। 200 रुपये का भाई, कितने का आता है वो डिओड्रेंट? ये हिमानी वाला जो हम देख रहे थे, 500 के अंदर आ जाता है यार, अच्छा खासा पूरा महीना चलता है यार। 500 रुपये, 500 रुपये नहीं लगा सकते अपने ऊपर यार पूरे महीने के लिए। तो वट एवर काइंड ऑफ अ पार्टनर यू हैव, देखिए सारी जिंदगी कमरे में तो बंद नहीं रहना ना, सोशली भी जाना है, इवेंट्स ओकेजन्स पे भी जाना है, शादी ब्याह तकरीबात ईद वगैरह पे भी जाना है, फिर आपने मॉल में भी जाना है, रेस्टोरेंट्स में भी जाना है। पीपल सी योर लुक एट योर पार्टनर एंड दे डिटरमिन हु यू आर एज अ पर्सन। सो आई मीन, मैं तो यही कहूँगा भाई, बेइज्जती करो। माँ ने जो तरबियत जो माँ को करनी चाहिए थी, अब आपको बनना पड़ेगा, पीछे भागना पड़ेगा बच्चों की तरह कि भाई नहा, मेरे करीब ना। एंड लाइक शो डिस्टेंस, शी इज लाइक आई लव यू टू बिट्स एंड एवरीथिंग, बट लाइक दिस इज टू मच, मुझे बदबू बर्दाश्त ही नहीं हो रही भाई, तुम कहाँ मेरे करीब आ रहे हो, बोलो नहा के आओ। सो या, इट इज़ अ पैटर्न। आई मीन, और वही वाली बात, फैमिली को बीच में इन्वॉल्व ना करें। माँ बाप इतने अच्छे होते तो खुद सिखाया होता, वो खुद एक हफ्ते में एक बार नहा रहे हैं तो वो किस मुंह से उसको बोलेंगे। तो क्रिएट योर बाउंड्री, और कोई सैक्रिफाइस करने की या हीरोइन बनने की ज़रूरत नहीं। यू डोंट हैव टू पुट अप विद दिस शिट, एंड पुट योर चाइल्ड फर्स्ट, एंड यू नीड टू प्रोटेक्ट योर पीस। सीधी सीधी बात है। तो भाई दिस इज़ अ नो गो एरिया, क्योंकि देखो, अगर इंसान के मिजाज में कोई प्लस माइनस है ना, देखिए मिजाज वेव्स में आता है, गुस्सा वेव्स में आता है, हर वक्त बंदा गुस्से में नहीं रहता, हर वक्त बंदा प्लेजेंट भी नहीं रहता, वेव्स होती है ना, कभी मूड अच्छा कभी बुरा है। बदबू का कोई मिजाज नहीं है, वो कांस्टेंट है, वो हर वक्त रहेगी। वो आपके अच्छे टाइम्स में भी आ रही है, वो आपके बुरे टाइम्स में भी आ रही है, वो एक कांस्टेंट है। ये पेनफुल है, ठीक है। गुस्सा, बैड मूड, शॉर्ट टेम्पर, मूड स्विंग्स, ये अप एंड डाउन आप में भी होंगे, उसमें भी होगा, ज़ाहिर है इंसान है, केमिकल इम्बैलेंस होता रहता है। प्लस में बदबू इज़ कांस्टेंट, वो तो आती रहेगी, हर सांस में आएगी, इमेजिन हर सांस में आ रही है आपको। अब मैं ये सब बोल रहा हूँ एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग, आप हैं कौन? मैं आपको, आप कह रही हो मैं आपको जानता हूँ, अभी कौन कौन है मेरी सराउंडिंग में जिसने ये बदबू वाला रकून पाला हुआ है आसपास? कौन है ये? खैर, डजंट मैटर, but I feel for you. If I'm your friend, if you're my friend, I wish you had the courage to come up to me without an alias. But I also understand that you have your concerns. But this is something you should not put up with, and this is
समथिंग दैट इज, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ना नॉन नेगोशिएबल होती हैं. दिस इज नॉन नेगोशिएबल मैन, एटलीस्ट इन माई वर्ल्ड. आई डोंट नो जितने लिसनर सुन रहे हैं हफ्ते में एक बार नहाने वाले, 2 बार नहाने वाले, दे माइट बी हेटिंग मी, बट लाइक आई एम सॉरी मैन, डोंट कम क्लोज टू मी इफ यू हैवंट शावर्ड दैट डे. मेरा तो सीधा सीधा यही है यार. लोगों को सेंस नहीं होती, गीले हाथ मिला लेते हैं यार. आई अवॉइड शेकिंग हैंड्स बिकॉज मुझे नहीं पता आपका हाथ आपके नाक में कब गया, आपकी गया, कहाँ कहाँ गया मुझे नहीं पता, आके हाथ मिला रहे हो. पसीने से भरे हाथ यार, आपको कैसे नहीं पता आपके हाथ में पसीना है? हाउ कैन यू नॉट नो? हाउ अनअवेयर डू यू हैव टू बी? हाथ मिलाए पूरा गीला करके चले गए. अब मैं गीला हाथ लेके खड़ा हूं, अब मैं किसी से नहीं मिला सकता. मैं मिलाऊंगा वो बोलेगा यार गीला हाथ मिला रहा है मुझसे. अब उसको क्या बोलूं कि मुझसे कोई और गीला हाथ मिला के गया है. और ये हाथ धोने वाला गीला नहीं है भाई, पसीने से भरा हुआ गीला. हर वक्त तो सैनिटाइजर नहीं होता जेब में. इट्स लाइक इट बॉइल्स माई ब्लड. मैं कह भी देता हूँ कि यार क्या गीला हाथ मिला के चले गए, कौन सी मुशक्कत करके आ रहा है भाई. हाथ मल के जरूरी हाथ मिलाना है, मुक्का मार भाई, यूं कोविड वाला कर ले यार, ये दूर से सलाम दुआ कर ले यार. कुछ लोग होते थे इंसिस्ट ऑन हगिंग. भाई नहीं करना हक तुझे यार, क्या हो गया? पता नहीं क्या तू मेरे नाक में डाल दे, मूड की माँ बहन एक कर दे. फिर कुछ लोग बदबू ट्रांसफर भी कर देते हैं. अब यहाँ मैंने मेजॉन क्रिवेली लगाया हुआ है, मैंने हिबिस्कस, क्या परफ्यूम है, टॉप है भाई. कैसा है हिबिस्कस भाई, कमरे से खुशबू नहीं जाती उसकी. बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव मेड. अब मैं वो क्रिवेली लगा के घूम रहा हूँ, ठीक है ना, और कोई आके कड़वेली करके चला जाए, मुझे बदबू से भर के चला जाए. अब मैं किसी से मिल नहीं सकता क्योंकि अगला बदबू दे गया मुझे. अबे यार मूड की माँ मैंने को जाती. खैर, आई विश यू वेल बहन, जो भी आप हैं ख्याल रखें. एंड प्लीज़ you have to draw a line. This is non-negotiable and you have to put your foot down in this, because not only is ये कमरे तक महदूद नहीं है, ये जहाँ जहाँ वो जा रहा है बदबू लेके जा रहा है. वो कार्टून याद है ना वो यार, वो कौन सा था ये, वॉल्ट डिज्नी वाला, जिसमें एक वो रकून ही होता है, वो जहाँ जा रहा होता है पीछे वो ग्रीन कलर का धुआं बन रहा होता है, सिग्निफाइंग द स्मेल. सो या स्कंक होता है वो. इट्स रियली बैड. ख्याल रखें. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है. हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. शुक्रिया.